welcome back, and today we are going to study adjectives. So, what is an adjective? Adjective is a part of speech that can be used to describe the word, describe or provide more information about a noun or a pronoun that acts as the subject in a sentence. Adjectives are found after the verb or before the noun it modifies. So, in short, we can say adjectives are the describing words. We have studied about them in our previous grades as well. That excel by the word describing words. So they used to describe a noun or a pronoun. Okay. So they can also describe the size, shape, feeling or a number of noun and pronoun. ये size को, shape को, feeling को या number of noun of shape हो. So this is size का example. कि it is big. The elephant is very big. Or this box is huge. Shape जैसे this the ball is in a the the card is in circular shape. Circular. ये shape बता रहा है. Circular or a round shape. The circle is a round shape. Feeling like happy. He is feeling happy. तो happy यहाँ पर क्या he is happy. तो ही को डिस्क्राइब कर रहा है हैप्पी. नंबर ऑफ नॉन और प्रोनाउन मेनी. मेनी क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है. ठीक है. Okay. Now here we have some examples given like 10. This is an example of number. Red, which is the example of a color. तो यहाँ पर हम एक और चीज डाल सकते हैं color. And more, which is another example of number. Big is example of shape, size. Then homeless, sly, little is again the shape, selfish, Polish is the feeling, and enough is again the number. So let's check your knowledge, how much you all are aware about adjectives. So here you all are having a quiz. So you have to read the given sentences below and you have to circle the adjective. The homeless beggar hasn't eaten in days. So first of all, let's stop this video and write the answers in the chat, and then let's discuss. So first of all, read the sentence given and circle the adjective. So I'm circling. First adjective क्या है? First sentence में homeless. खोलना ज़्यादा bright white use करते हैं. So we are having homeless here. Okay, the fox is sly animal. Here sly is an adjective. Then Mary had a little lamb. Little is an adjective. The selfish giant didn't allow the children to enter his garden. Here selfish. Then the foolish dog barked at its reflection and lost its food. So here foolish. The family didn't have enough food for the winter. Enough is the adjective as it is describing a noun and a pronoun. The girl is at a straight level boxer. Here जो girl है उसका level बताया जा रहा है कि वो कितने level की boxer straight level. तो girl को describe कर रहा है straight level. The brave army marched through the streets. यहाँ पर army को describe कर रहा है brave. I have no idea such a fantastic place exists. यहाँ पर उस प्लेस को फैंटास्टिक के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. फिर हमारे पास है some oranges are pretty sour. So here we have some adjective, then pretty adjective and sour. ये तीनों ही words oranges को describe कर रहे हैं. So these are the answers. So adjective of quality. When adjective describes the quality of someone, quality से पता चल रहा है
कि कोई भी चीज की क्वालिटी को जब वो बताए, देन इट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसे हम क्वालिटी का एडजेक्टिव कहते हैं. सो दैट्स फॉर एग्जांपल, ट्यूलिप इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अब उस फ्लावर की क्वालिटी बता रही कि हाउ द फ्लावर इज, इट्स ब्यूटीफुल. रामू इज हॉनेस्ट. अब ऑनेस्ट रामू की क्वालिटी बता रही कि रामू की क्वालिटी क्या है, कि वो एक ऑनेस्ट बॉय है. दार्जिलिंग इज ए नाइस प्लेस. अब यहाँ पे दार्जिलिंग की क्वालिटी बता रहे नाइस जो की है, कि वो एक अच्छी प्लेस है, अच्छी जगह है. द ओल्ड मैन कैरिड अ हैवी बैग. अब यहाँ पर जो ओल्ड मैन है उसकी एक क्वालिटी बता रही कि उसने हैवी बैग उठा रखा. तो बैग, सॉरी, यहाँ पर बैग की वो बताई जा रही है. दो चीजें यहाँ पर, एक तो ओ मैन, मैन की क्वालिटी बताई जा रही कि मैन कैसा है, ओल्ड. और एक बैग की, कि बैग कैसा है, हैवी. दोनों की क्वालिटीज बताई जा रही है. We are on demonstrative adjectives. So demonstrative adjective are the adjective that point. देखो demonstrative word से ही नहीं लिखता है एक word demonstrate. तो जो चीज point out करे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं. इसमें मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझानी है. सो अभी हम वो समझते हैं. सी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मेनली हम यूज करते हैं दिस, that, these and those. अब समझने की बात ये है कि जो दिस एंड दैट होते हैं, ये दोनों जो ये दोनों यूज होते हैं सिंगुलर के साथ. ये सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है. बट इन दोनों में तब भी जमीन और आसमान का फर्क होता है. क्या फर्क होता है ये बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको भी बता दूं. जो दिस होता है वो यूज किया जाता है क्लोज थिंग के लिए, ठीक है, जो भी थिंग क्लोज है. और दैट यूज होता है फार के लिए, जो भी थिंग फार है, दूर है, ठीक है. दिस फॉर a close and a singular thing, and that for a far or and a singular thing. अब these जो है and those है, ये दोनों यूज होते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है. इन दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क है, जो कि लोगों को नहीं पता होता है, बच्चों को, और फिर नंबर हो जाते हैं शून्य. प्लूरल, प्लूरल, ठीक है. अब देखो दिस जो होता है, वी यूज इट विद, ये आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको कोई बताएगा, और अभी बता रही तो फायदा ले लो. दिस जो होता है वो क्लोज थिंग के साथ यूज होता है, और प्लूरल, दिस क्लोज और प्लूरल के साथ होता है, और दोस फार और प्लूरल के साथ होता है. आप लोगों ने हमेशा दिस दैट दिस दो समझ करके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डाला, लेकिन कभी इसका अंतर समझा, मतलब समझा, दिस दैट दिस दोस होते क्या, ये चार क्यों, हमें दिस और दिस दोस इनमें से कोई एक ही क्यों नहीं लिया, दो क्यों नहीं लिए, दिस दैट दिस दोस क्यों बने हैं. आप समझ में आया होगा. सो अगर समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को. सो अब वे आर गोइंग टू स्टडी. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको और अच्छे समझ में आएगा. सो दिस कार इज माइन, दैट कार इज योर्स. और देखो उसमें दिस और दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अब दिस जो है वो क्लोज थिंग को बता रहा है कि कार जो है वो पास में है, और जो योर्स कार जो है, जो दूसरी की कार है, वो दूर है. These mangoes are ripe, those are raw. तो ये हाथ के पास वाले जो है वो मैंगोज राइप है, और जो दूर है वो रॉ है. ओके, एक चीज और बतानी है.
आप जानते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ आप लोगों ने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा, तो एक बार वो समझ लीजिए। ओके ना, एडजेक्टिव प्लस वर्सेस प्रोनाउन। एडजेक्टिव में हमने भी पढ़ा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन में भी हमने एक वर्ड आता था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दोनों में यूज करते थे हम दिस, दैट, these, those। ये हमने दोनों में ही पढ़ा हुआ है कि दोनों में दिस दैट दिस। तो अब दोनों में अंतर क्या है? अगर आपके सिलेबस में प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का एक साथ आ गया और दोनों का टेस्ट हुआ और आपको डिफाइन करना है एडजेक्टिव क्या प्रोनाउन क्या है, एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू क्योंकि दोनों में दिस दैट दिस तो यूज होता है। तो अंतर क्या है कि कभी भी प्रोनाउन प्लस नाउन, ये मेरी टीचर ने मुझे सिखाया था जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ, कि प्रोनाउन याद रखना, कभी प्रोनाउन प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन या फिर नाउन प्लस नाउन। नाउन या फिर नाउन, वैसे नाउन प्लस नाउन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, बट स्टिल बता रही हूँ, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होते। दीज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। कभी भी प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते कि ही, देखो फॉर एग्जांपल सेंटेंस मैंने ये नहीं कह सकती ही बॉय वाज अ ग्रेट, ही बॉय वाज हॉनेस्ट। कभी भी नाउन प्रोनाउन प्लस नाउन आपने एक साथ नहीं पढ़ते हुए सुना होगा, प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन भी एक साथ नहीं सुना होगा, नाउन प्लस नाउन भी नहीं सुना होगा। तो फिर मैम अगर कोई भी चीज प्रोनाउन के आगे आ गई या प्रोनाउन के आगे आ गई तो हम उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। देखिए आपने, अगर एक सेंटेंस है, एक मैं दिस को रखती हूँ यहाँ पर, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। अब इस सेंटेंस में जो कार है वो एक नाउन है, इट्स ए नाउन, ठीक है। अभी भी मैंने बताया नाउन, अगर ये प्रोनाउन हो दिस, ये वाला हम प्रोनाउन का डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ले लें तो नाउन प्लस प्रोनाउन हो गया जो कि नॉट पॉसिबल है, तो हम इस दिस को कह देते हैं एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे क्लास? एडजेक्टिव। वेरी नाइस, ठीक है, ये दिमाग में रखना। अब अगर मैं बोलूं let's change the color to this, कि this is my car, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अब जो is, जो this है वो is my से सेपरेट हो गया है, तो अब ये this हो गया है प्रोनाउन, ठीक है। बिकॉज नाउन ये रहा और नाउन प्लस नाउन यहाँ पर नहीं हो रहा है, नाउन प्लस नाउन हो रहा है, नाउन प्लस प्रोनाउन, या नाउन प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रोनाउन नहीं हो रहा है, तो अब ये दिस जो है ये प्रोनाउन बन गया। अब समझ में आया क्लास एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो जस्ट नाउन के बाद आता है, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है या एडजेक्टिव के बाद या उसके बहुत बाद में होता है, लेकिन प्रोनाउन उससे कुछ लेटर सेपरेट करके आता है।
अब आपको एक सेंटेंस था कि वो यहाँ एग्जांपल्स में मैंने गिवन, दिस कार इज माइन, दैट इज योर्स, दैट कार इज योर्स, ऐसा ही सेंटेंस था, इज योर्स तो होगा नहीं, दैट कार इज योर्स। दिस कार इज माइन, दिस कार, कार नाउन है और दिस, और यहाँ पर का दिस जो अगर प्रोनाउन में माने तो प्रोनाउन प्लस नाउन नेवर पॉसिबल, तो ये एडजेक्टिव यूज बन गया, ठीक है। अब ऐसे दैट कार इज योर्स, यहाँ पर कार जो था वो नाउन था और उसके आगे दैट आ गया, नाउन प्लस नाउन प्रोनाउन नेवर पॉसिबल, दैट बन गया एडजेक्टिव। प्रोनाउन वाले में भी आप ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं। सो नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से पता चल रहा है वर्ड क्वांटिटी से कि वो क्वांटिटी के बारे में बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल अस हाउ मच of thing, it tells approximate amount, not exact number of nouns such as a little, some, any, no, most, half, all, whole, sufficient, few, ग्रेट एक्सेट्रा, ठीक है। वो क्वांटिटी के बारे में बेसिकली बताता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर फॉलोड बाय सिंगुलर अनकाउंटेबल, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स हम यूज करते हैं। ये मुझे लगा था मुझे बताना पड़ेगा बट इट इजंट, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयुष एट द होल केक, यहाँ पर होल क्या है, क्वांटिटी का एग्जाम्पल। The children purchase most of the ice cream, यहाँ most क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। How much money do you need, ये क्वांटिटीज है क्योंकि हमें अनकाउंटेबल थिंग्स है, हमें स्पेसिफिक नहीं है, अप्रोक्सीमेट और नॉट एग्जैक्ट हमें गिवन नहीं है। He made so much fun in Nainital last year, he had so much fun in Nainital last year। नैनित मच जो है वो हमें अप्रोक्सीमेट वो नहीं बता रहा। आई हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट, टाइम कितना है हमें नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, तो क्वांटिटी में आ गया। गिव मी लिटिल वाटर, कितना लिटिल, तो अप्रोक्सीमेट नहीं है। रिया हैज बॉट सम न्यू ड्रेसेस, यहाँ सम हमारा क्वांटिटी का एग्जांपल है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी ऑफ थिंग्स, कि वो कितनी थिंग्स है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ उसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में सीखा कि वो बताता था हाउ मच इज समथिंग, कि कोई चीज कितनी है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट हमें एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट होता था, वो एग्जैक्ट नहीं रहता था, बट ऐसा हमारे और वो यूज होता था अनकाउंटेबल में, है ना, यही सीखा था। अब इनके सारे अपोजिट होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या होते हैं। इट टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर, वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है। हाउ मेनी थिंग्स बताता है, सच एज 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलन नंबर्स। नाउ आयुष 8, अभी देखो वहां पर था आयुष 8 होल केक, अब इसमें एग्जैक्ट बता रहे हैं आयुष हैज 3 cars, कितनी कार्स है, 3 cars। द फर्स्ट बॉय इन द रो इज वेयरिंग द रेड हैट, देखो फर्स्ट यहाँ पर एग्जैक्ट बता रहा है। 5 laborers are absent today, यहाँ पर भी एग्जैक्ट के बारे में बात हो रही है। गिव मी 1 चॉकलेट प्लीज, कितनी चॉकलेट देनी है हमें एग्जैक्ट पता है। आई स्कोर 100 मार्क्स, 100 हमें एग्जैक्ट बता रहा है। पास मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर 1 हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। रिया हैज बॉट 10 न्यू ड्रेसेस, यहाँ 10 हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। Now next we have interrogative adjective. Interrogator used to ask questions about noun or in question nouns such as what, which, whose, how, why, etc. ठीक है, इसके क्वेश्चंस के आंसर वो देता है। So now for example, whose sister is this? अब यहाँ पर देखो इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया होगा नहीं आपको शायद मैंने, बट इंटरोगेटिव प्रोनाउन में होता है whose, देखो इसमें क्या है, नाउन के जस्ट आगे लग रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन बन रहा है, सॉरी एडजेक्टिव बन रहा है। whose notebook is this, नोज के सर्च आ जा रहा है। व्हाट, विच, हुज, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा, यही मेनली वर्ड यूज करते हैं। विच बैग इज योर, तो यहाँ बैग की वो बता रहा है कि कौन सा बैग, ठीक है। विच लीव्स डू यू वांट, यहाँ पर विच इंटरोगेटिव एग्जांपल है कितने सारे। विच इज योर फेवरेट ऑथर, अब यहाँ पर
ये सेंटेंस हो जाएगा बिकॉज ये अगर विच ऑथर इज योर फेवरेट होता तो आता, तो इस सेंटेंस को हम कर देंगे कट। ओके, इस सेंटेंस को छोड़ो। नाउ व्हाट कलर इज योर कार, आपकी कार का कौन सा कलर है। सो व्हाट इज हेयर सेक्शन, व्हाट डिड यू ईट इन द ब्रेकफास्ट, व्हाट यहाँ पर is। अच्छा नहीं, यहाँ पर भी आपका रॉन्ग सेंटेंस बन रहा है cause यहाँ ये बन गया व्हाट प्रोनाउन, तो इसे भी हम काट देंगे। So I hope you learned something in today's session. See you next time. Bye bye.